Assalamu alaikum students. Hope you all are doing well. We are in computer class. As you know, we have completed our chapter number 1. Now we are going to start our new chapter, chapter number 3, that is about MS Word. Before starting our today's lesson, first I want to show you a video. Watch the video carefully. Let's have a look. Welcome to Microsoft today's lesson, which is about superscript and subscript. In Microsoft Word, most of the time we are required to create scientific formulas. So, how we work with superscript and subscript, let me show you the demonstration. Like we have formula x squared, and here's first, like first time or second first. This is how. Now, how to create the square here? X2. Just select the 2 and click here. X squared. Superscript. We want make it x squared. And then first, if you want make it again, select it and then click on superscript. Now, it was about the superscript. This one, how to make superscript. Thanks. Now, the subscript is about, like we have scientific formula logarithm log 1, or like this. So what we have to do, select the first one, select the number, and then just click on the subscript. Now we can see the scientific formulas. We made it. So this is how we create scientific formulas through superscript and subscript. It is very helpful and it is very important in Microsoft Word to create your scientific formulas. And anywhere else, like if you want somewhere else. Okay students, you have watched the video. Now I will explain it to you. Our today's topic is formatting characters. The first one is font effects, superscripts and subscripts. A superscript is a number or letter that appears a little above the normal line of the text. It is displayed in a reduced font size. For example, ST, ND and RD are the superscripts in first, second and third. Students, सुपरस्क्रिप्ट जो होता है वो कैरेक्टर जो नॉर्मल लाइन से आपको थोड़ा ऊपर नज़र आए लिखा हुआ और उसका साइज़ थोड़ा छोटा हो, उसको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट. फॉर एग्जांपल, in a first, second and third, you can see it RD, ST and ND are in a reduced form. ठीक है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में ST, ND और RD आपको छोटे साइज़ में नज़र आ रहे हैं और वो लाइन से थोड़े ऊपर हैं. इनको कहते हैं सुपरस्क्रिप्ट्स. नेक्स्ट इज सबस्क्रिप्ट. A subscript is a number or letter that appears a little below the normal line of the text. For example, 2 is the subscript in H2O. और स्टूडेंट, सबस्क्रिप्ट वो होता है जो नॉर्मल लाइन से थोड़ा नीचे आपको नज़र आए और वो भी रिड्यूस्ड फॉर्म में होता है. फॉर एग्जांपल H2O. ठीक है, इसके अंदर आप देख सकते हैं जो 2 है
वो नॉर्मल लाइन से थोड़ा नीचे नज़र आ रहा है और रिड्यूस्ड फॉर्म में है, इसको कहेंगे सबस्क्रिप्ट। अब सबस्क्रिप्ट आपने और सुपरस्क्रिप्ट कैसे यूज़ करना है, लेट्स सी। सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट एज सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि जो वर्ड आपने एज अ सुपरस्क्रिप्ट या सबस्क्रिप्ट आपने यूज़ करना है, सबसे पहले आपने उसको सिलेक्ट करना है, ठीक है। फर्स्ट वन स्टेप इज़ सिलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू फॉर्मेट एज सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। देन यू विल गो टू द होम टैब। From the Home tab, select font group of commands. Click on X2. Look at this. From Home tab, from the font tool group, select superscript और subscript. इसके अंदर X2 और X square आपको नज़र आ रहे हैं, ये सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के लिए। आप यहाँ से यूज़ करेंगे सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट। देन सिलेक्ट टेक्स्ट एज सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट टू मेक इट, फॉर एग्जांपल फिगर 3.1a। नाउ स्टूडेंट्स, एक तो ये वे था कि आप डायरेक्टली फॉन्ट ग्रुप को यूज़ करते हुए सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा जो शॉर्टकट कीज़ हैं आप इसको एज अ शॉर्टकट कीज़ के तौर पे भी अप्लाई कर सकते हैं। और वो शॉर्टकट कीज़ कौन सी हैं, ये टूल ग्रुप के अंदर दी हुई हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप सुपरस्क्रिप्ट यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप सुपरस्क्रिप्ट की जगह फॉन्ट टूल ग्रुप की जगह ये शॉर्टकट कीज़ यूज़ करते हुए आप सुपरस्क्रिप्ट को यूज़ कर सकते हैं। और वो शॉर्टकट कीज़ कौन सी हैं? सिलेक्ट द टेक्स्ट, सबसे पहले आपने टेक्स्ट सेलेक्ट करना है। देन आप कीबोर्ड से कंट्रोल शिफ्ट एंड इक्वल साइन, ठीक है, आप कंट्रोल शिफ्ट और इक्वल की तीनों इकट्ठी आप प्रेस करेंगे तो देन आप सुपरस्क्रिप्ट यूज़ कर लेंगे। नेक्स्ट इज सबस्क्रिप्ट, और सबस्क्रिप्ट के लिए शॉर्टकट की यूज़ होगी कंट्रोल एंड इक्वल, ठीक है। आप सिलेक्ट कर लेंगे टेक्स्ट को, उसके बाद कीबोर्ड से कंट्रोल की आप प्रेस करके रखेंगे और देन आप इक्वल टू की प्रेस कर देंगे, तो ये सबस्क्रिप्ट आपका यूज़ हो जाएगा। दीज आर द शॉर्टकट कीज़। Next students, fonts effects. On the font group of the home tab, the text effects button A allows you to apply various text effects to the selected text. ठीक है, फॉन्ट टूल ग्रुप के अंदर डिफरेंट टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स भी आप अप्लाई कर सकते हैं। वो ये हैं, फॉर एग्जांपल ये देखें, ये ए बना हुआ है, इसके साथ आपको छोटा सा डायलॉग बॉक्स लॉन्चर एरो नज़र आ रहा है। इस एरो को यूज़ करते हुए आप डिफरेंट टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स को यूटिलाइज़ कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल द फर्स्ट स्टेप इज़ सेलेक्ट द टेक्स्ट यू वांट टू अप्लाई इफ़ेक्ट। सबसे पहले आप वो सिलेक्ट करेंगे टेक्स्ट जिसको आप टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं। देन आप उस एरो पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ड्रॉप डाउन एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये फिगर 3.1b ये अपीयर हो जाएगी। इसमें देखें आपको ए डिफरेंट इफ़ेक्ट्स के साथ लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। आप इनमें से जो टेक्स्ट इफ़ेक्ट यूज़ करना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लें और सिलेक्ट करने के बाद अप्लाई कर दें, ठीक है। तो यूँ आप अपने डॉक्यूमेंट के अंदर डिफरेंट टेक्स्ट इफ़ेक्ट्स को यूज़ कर सकते हैं। Next student, this is a click time. You will have to practice superscript and a subscript on your systems. Zoha's mathematics teacher want to type the following equation. ठीक है, इक्वेशन दी हुई है, जोहा इसको एज अ टाइप करना चाह रही है। इसमें सुपरस्क्रिप्ट्स दिए हुए, तो वो इन सुपरस्क्रिप्ट्स को कैसे यूज़ करेगी, ठीक है। तो आपने इन स्टेप्स को फॉलो करते हुए अपने सिस्टम में प्रैक्टिस करना है। दिस इज़ योर
today's lesson, how you can use superscripts and subscripts. Next topic is character spacing. Students, Microsoft Word has many options that allows you to adjust the positioning of the characters. Character spacing may be adjusted and letters can be stretched or compressed. ठीक है, आप वर्ड के अंदर जब अपना डॉक्यूमेंट क्रिएट करते हैं तो उसमें बहुत सारी ऑप्शंस आपके पास हैं कि आप कैरेक्टर की स्पेसिंग कम ज़्यादा कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं. तो ये सारी कैरेक्टर स्पेसिंग से रिलेटेड जितनी भी ऑप्शंस हैं वो आपको होम टैब के अंदर फॉन्ट टूल ग्रुप के अंदर ही नज़र आएंगी. फॉर एग्जांपल फर्स्ट वन इज़ सेलेक्ट द कैरेक्टर्स टू बी एडजस्टेड. फर्स्ट स्टेप ये है कि आपने जिस लाइन या वर्ड्स या कैरेक्टर को आपने यूज़ करना है, चेंज करना है कैरेक्टर स्पेसिंग, सबसे पहले आप उसको सिलेक्ट करेंगे. सिलेक्ट करने के बाद आप फॉन्ट ग्रुप होम टैब के अंदर जो एरो दिया हुआ है उस पर क्लिक करेंगे. ठीक है, ये देखें इधर होम टैब के अंदर ये फॉन्ट टूल ग्रुप है. इसके अंदर कॉर्नर पे आपको ये सर्कल किया हुआ एरो नज़र आ रहा है. आप इस एरो पे क्लिक करेंगे. जब आप इस एरो पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने ये डायलॉग बॉक्स ओपन होगा फिगर 3.2a. अब इसके अंदर देखें आप एडवांस्ड पे क्लिक करेंगे. ठीक है, ये एडवांस्ड पे क्लिक करेंगे. देन आप स्केल 100%, इसके अंदर आप यूज़ कर सकते हैं डिफरेंट कैटेगरीज. For example, scale allows you to adjust the width of the characters. Available values are 200, 150, 100, 90, 80. ठीक है, जितना आप अपने कैरेक्टर्स को छोटा बड़ा विड्थ उनकी करना चाहते हैं वो यहाँ से आप स्केल में से यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, 100%, 90, 80 एज इट्स अप टू यू. ठीक है, नेक्स्ट स्पेसिंग पे आप देखें. स्पेसिंग आपको यहाँ पे नॉर्मल नज़र आ रही है. ठीक है, आप ये चेंज कर सकते हैं इस एरो पे क्लिक करने के बाद. ठीक है, इस एरो को जब क्लिक करेंगे तो आपके सामने डिफरेंट ऑप्शंस आएंगे. ठीक है, स्पेसिंग अलाउज यू टू सिलेक्ट बिटवीन नॉर्मल स्पेसिंग, कंडेंस्ड और एक्सपेंडेड. ठीक है, आप इसमें नॉर्मल स्पेस भी कर सकते हैं, कंडेंस्ड भी कर सकते हैं और एक्सपेंड भी कर सकते हैं. ठीक है, ये मैं आपको नेक्स्ट दिखाती हूँ कि एक्सपेंडेड कैसे होगा और कंडेंस्ड कैसे होगा. नेक्स्ट है पोजीशन. ठीक है, ये देखें पोजीशन इज़ अ नॉर्मल. इसको भी आप चेंज कर सकते हैं. इस एरो पे क्लिक करेंगे, देन कौन सी ऑप्शंस आपके सामने आएंगी. पोजीशन अलाउज यू टू सिलेक्ट बिटवीन नॉर्मल, रेज्ड और लोड पोजीशन. ठीक है, आप इससे कैरेक्टर की पोजीशन को चेंज करेंगे. नॉर्मल में तो नॉर्मल ही आप व्यू कर सकते हैं. रेज्ड में आपको थोड़ा बड़ा नज़र आएगा, लोअर्ड में आपको छोटा नज़र आएगा. ठीक है, जिस अमाउंट में आप उसको यूज़ करना चाहते हैं, रेज्ड में, लोअर्ड में या नॉर्मल में, तो यहाँ से आप चूज़ कर लेंगे. नेक्स्ट स्टूडेंट, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, जो आप सेटिंग्स अप्लाई करेंगे वो आपको यहाँ पे प्रीव्यू में नज़र आएंगी. ठीक है, इस एरिया में जो आप अपने कैरेक्टर की सेटिंग यहाँ से स्केल, स्पेसिंग, पोजीशनिंग जो आप सिलेक्ट कर रहे हैं वो आपको यहाँ प्रीव्यू में साथ में आप यहाँ पे देख सकते हैं. ठीक है, देन आप ओके कर देंगे. ठीक है, और वो आपका अप्लाई हो जाएगा. अब नेक्स्ट पेज पे के ऊपर आप देखें डिफरेंट कैरेक्टर्स आपको स्पेसिंग स्केल के साथ दिखाए हुए. ये देखें, सम ऑफ द कैरेक्टर स्पेसिंग इफेक्ट्स आर शोन बिलो. फॉर एग्जांपल, दिस इज़ फन. ठीक है, ये दिस इज़ फन लिखा हुआ है. दिस इज़ अ नॉर्मल टेक्स्ट. ठीक है, नॉर्मल फॉर्म में लिखा हुआ है. अगर आप इसको कंडेंस्ड स्पेसिंग में लिखना चाह रहे हैं तो आप इसके अंदर देखें दिस इज़ फन. ठीक है, दिस इज़ फन, आपको स्पेस कम नज़र आ रही है. ठीक है, कंडेंस्ड कर दी गई है. नेक्स्ट में है दिस इज़ फन. ठीक है, इसके अंदर देखें आपको इज़ फन जो है वो रेज्ड पोजीशन में नज़र आ रहा है. ठीक है, ये देखें, ये नॉर्मल लाइन से ऊपर है तो ये रेज्ड फॉर्म में है. नेक्स्ट नीचे देखें दिस इज़ फन, इसके अंदर इज़ फन जो है वो आपको लोड पोजीशन में नज़र आ रहा है, नॉर्मल लाइन से नीचे. ठीक है, उसके बाद
नेक्स्ट है दिस इज़ फन, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ठीक है। आप देखें वो खुला खुला लिखा हुआ, एक्सपेंड कर दिया उसने दिस इज़ फन को, ठीक है। ये देखें एक्सपेंडेड फॉर्म। दिस इज़ फन स्केल 66%। मैंने आपको बताया था 100%, 60, 90, 200। आप जितना बड़ा छोटा करके देखना चाहते हैं आप स्केल में से उसकी परसेंटेज को चूज़ कर लेंगे। इसमें उन्होंने ये जो दिखाया है इसमें उन्होंने स्केल यूज़ किया है 66%। तो आपको नज़र आ रहा है दिस इज़ फन आपको थोड़ा स्मॉल साइज़ में नज़र आ रहा है। तो यूँ आप कैरेक्टर स्पेसिंग इफ़ेक्ट्स को यूज़ करते हुए अपने डॉक्यूमेंट के अंदर यूज़ कर सकते हैं। नाउ आई विल शो यू अ वीडियो रिलेटेड टू कैरेक्टर स्पेसिंग। आफ्टर दैट hopefully you will understand today's lesson. You will practice it at home on your systems. See you tomorrow. Allah Hafiz. Text that is squashed up can be hard to read, as in this text, which has been condensed in order to save space. To change the space between letters, highlight the text, select the Home tab, and in the font group, click on the right arrow at the bottom. In the font dialog box, select the Advanced tab and Normal from the options for spacing. You can view the effect of increasing the spacing in the preview box. Click on OK to apply the changes.